It's a story about one of the biggest Olympic sports legends. His name was Karoli Zarks, and the story comes from 1938. बहुत पहले की बात है 1938 की कि कैरोली ज़ार्क्स जो है एक हंगरी करके एक कंट्री है जिसको हंगरी मतलब भूख वाला हंगरी नहीं बट देयर इज अ कंट्री कॉल्ड हंगरी सो ही वाज अ सार्जेंट इन द आर्मी एंड ही वाज अ पिस्टल शूटर जो पिस्टल शूटर होते हैं ना जो शूटिंग चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो कैरोली ज़ार्क्स जो है वो पिस्टल शूटिंग चैंपियन थे हंगरी के और उनका सपना था इट वाज हिज ड्रीम टू अर्न अ मेडल फॉर द कंट्री बट एक दिन वो आर्मी की प्रैक्टिस होती है तो उसमें बम भी होता है तो एक जिसको हैंड ग्रेनेड कहते हैं तो उनके हाथ में हैंड ग्रेनेड एक्सप्लोड हो गया एंड ही लॉस्ट हिज शूटिंग हैंड उनका हाथ ही पूरा चला गया अब जब उनका पूरा हाथ चला गया राइट हैंड जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड जिसे हम शूट करते हैं जिसे हम काफी सारे काम करते हैं सो ही लॉस्ट हिज शूटिंग हैंड उनका तो सपना ही खत्म हो गया उनकी लाइफ खत्म हो गई और बिकॉज बिना हाथ का शूटर ही नहीं हो सकता बिना हाथ का तो सोल्जर भी नहीं हो सकता तो उनकी जॉब भी चली गई वो 1938 की बात है उस टाइम पे तो ऐसे ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स नहीं हुआ करते थे जैसे आज दुनिया थोड़ी फिर भी बदली है तो अवेयरनेस है राइट्स की वगैरह उस टाइम पे नहीं थी तो उनको जॉब से भी निकाल दिया गया सो ही हैड नो जॉब no hand he was in a hospital people came and pitied him and they said oh, we feel very sad for you don't worry etc they tried to console him जिसको हिंदी में कहते हैं सांत्वना देने की कोशिश की but he felt very upset and then 2-3 days later when people came to see him he was not even there he had disappeared from the hospital and so people didn't know where to find him so they kept looking for him but he could not be found eventually people gave up and they stopped looking for him and then they found बहुत लॉन्ग टाइम पास्ट एक साल बीत गया एक साल के बाद देयर वाज अ शूटिंग चैंपियनशिप गोइंग ऑन एंड दिस गाय कम्स बैक so people see him and they say अरे where were you Caroli we were looking for you चलो चलो you have come back आओ बैठो why don't you watch the shooting championship all your friends are here आओ बैठो तुम्हारा मन बहल जाएगा you will feel happy he said no I have not come to watch I have come to compete तो मैं बोला भाई तुम्हारे पास तो हाथ ही नहीं है तुम compete कैसे करोगे उसने कहा मेरे पास एक हाथ अब भी बाकी है I still have my left hand so you see for the last 1 year he was practicing in the forest with his left hand how to lift a gun जिस हाथ से उसने चम्मच भी नहीं उठाया था he was practicing how to lift a gun and he learned how to shoot and that day he competed and he beat everyone and he won the championship not only that ये तो 1939 में हुआ बट फिर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तो ओलंपिक्स हुआ नहीं सो ओलंपिक्स टुक प्लेस इन not even in 1944 it took place in 1948 and he went to the Olympics and he broke the world record and established a new world record shooting with his left hand and then in 1952 he won gold medal once again and he says that जब मेरा हाथ गया ना तो मेरे पास दो ऑप्शन थे typically लोग ये बोलते हैं he said two things he said I could have asked God why me why did this happen to me अक्सर लोग ये बोलते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ why me and he said I could have also have asked this question why me so and then कि किसी और के साथ हो जाता मेरे साथ ही क्यों हुआ मैं तो चैंपियन हूं चैंपियन के साथ ऐसा क्यों हुआ and then he said the second question I could have asked myself is why now कि अभी ऐसा क्यों हुआ जब when I was so close to winning my medal बुढ़ापे में हो जाता 90 की एज में it could have happened at 90 and then I would have happily lived without a hand और या बचपन से ही हो जाता या पैदाइशी हो जाता तो at least I would not know any other world but why it happened when I was so close to my goal so two questions he said why me and why now and he said I could have spent my entire life looking at the hand that was not there or I could spend the rest of my life using the hand that was still there and I focused and I decided to use my hand that was still there जब मैंने ये कहानी सुनी ना तो मैं that story changed my life I said जितना भी बुरा हो रहा है लाइफ में हमारे साथ we have two options we can look at the hand that is not there and keep asking why me and why now or I can use the hand that is still there because you see लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए एक हाथ ही काफी होता है
और Yes. और शूटिंग चैंपियन बनने के लिए भी एक हाथी काफी होता है। तो उस स्टोरी से मुझे समझ में आया कि लाइफ में दुख सबके होता है। अंबानी की लाइफ में भी दुख होता होगा जरूर, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ दुख होता है, बट हम दुख को नहीं बदल सकते, हम अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं।